إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور حاضرین علماء، ہر قسم کی تعریف کبریائی رسول کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 29ویں پارے کی شروع کی آیتیں تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے اور جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ الذي خلق الموت والحیات، جس نے تمہاری زندگی اور موت کا سسٹم بنایا، جس نے تم کو دنیا کے اندر پیدا کیا، زندگی دی، پھر ایک مقررہ وقت تک تم کو موت دیتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا، جو نظام بنایا، کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس امتحان کا جو رزلٹ ہمیں ملے گا وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ اب اس امتحان میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتایا ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں زیادہ نہیں دیکھا جائے گا،
बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा ये कि कौन शख्स बेहतरीन अमल करता है। बहुत से लोग बहुत अमल करते हैं। मुहर्रम का महीना आया, अलग अमल शुरू है। रबीउल अव्वल का महीना आया, अलग अमल शुरू है। शाबान का महीना, अलग अमल शुरू है। कभी ईद मिलादुन नबी, कभी यदावी, कभी बरावी, किस्म किस्म के लोग अमल करते हैं। अमल है लेकिन किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के ख़िलाफ़ है उनका अमल। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर फरमा चुका, हल अताका हदीथुल गाशिया वजूहुम यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आएंगे जो दुनिया के अंदर इतना अमल किया होगा, इतनी इबादतें की होगी, इतनी मेहनत की होगी कि थक के चूर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी तस्ला नारन हामिया, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम में डाल देगा। क्यों जहन्नम में डालेगा? वजह यह है कि उनका अमल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, सुन्नत के ख़िलाफ़ था। एक बात और नोट कर लेना ज़रूरी है यहाँ पर कि अगर हम कोई भी नेक काम करते हैं, हम कोई भी भलाई का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, हमारे अंदर तौहीद होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर तौहीद का मादा मौजूद नहीं है तो हमारा कोई भी अमल, हम कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, कितने भी रोज़े रख लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो सूरह कहफ की आखिरी आयत उठाकर पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ, तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, बस फ़र्क ये है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का नबी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगम्बर हूँ। मेरी जानिब अल्लाह की तरफ से वही आती है। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह, जो इंसान, जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहता है, जो इंसान कामयाब होना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो दो काम करे। पहला काम तो ये करे कि वो नेक अमल करे, कोई भी अमल करे तो सालिह अमल करे। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा, अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। अगर हम नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह के लिए पढ़ें, सजदा करें तो अल्लाह के लिए करें। अगर हमने गैरुल्लाह के लिए सजदा किया, अगर हमें कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांगे। अगर हमने जाकर किसी और से मांगा, किसी और के सामने अपने सर को झुकाया, फरियाद रसी की, तो हालांकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं, बजाय दूसरों की कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा, तुम उसके साथ शिर्क ना करो। अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारी कोई भी नेकियां उसके यहाँ कबूल नहीं होंगी। मेरे भाइयों, हम और आप इस दुनिया के अंदर इम्तिहान देने के लिए आए हैं। हमारा इम्तिहान लेने वाला कौन होगा? हमारा इम्तिहान लेने वाला, जाहिर सी बात, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब कैसे लेगा? वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के 18वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क़यामत के दिन हम तुम्हारे आमाल को तौलेंगे मीज़ान पर, तुम्हारी नेकियों को भी तौला जाएगा, तुम्हारी अच्छाइयों को भी तौला जाएगा, तुम्हारी बुराइयों को भी तौला जाएगा, तुम्हारे गुनाहों को भी तौला जाएगा। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, क़यामत के दिन एक राई के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन ख़रदलिन अतैना बिहा, क़यामत के दिन एक राई के दाने के बराबर भी अगर मेरे बंदे
क़यामत के दिन एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने कोई नेक अमल किया होगा, अतैना बिहा, मेरे बंदो हम सामने ले जाएंगे, वकफ़ा बिना हासिबीन, लिहाजा हम हिसाब लेने वाले हैं, हमारे हिसाब में कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई ज़्यादती नहीं होगी, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों ज़रा गौर करें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा हिसाब लेने वाला अगर किसी का हिसाब लेता है उससे भूल चूक हो सकती है, उससे कुछ कमियां कुछ कोताहियां हो सकती है, लेकिन जब हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा तो उससे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इल्म की, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कैसी है, वो तो काले रात में काली पहाड़ पर चलने वाली काली चूड़ियों की चाल से वाकिफ़ है। मेरे भाइयों उस अल्लाह के इल्म की, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की मिसाल तो ये है, कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन खरदलिन फतकुन फ़ी सफ़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह की शान तो ये है कि अगर दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी, किसी चट्टान के नीचे, किसी चट्टान के पीछे छुपी हुई होगी, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह तबारक व तआला बारीक से बारीक चीज़ों की खबर रखने वाला है। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर हम बहुत से गलत काम करते हैं, बहुत सी बुराइयां करते हैं, बंद कमरों के अंदर करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं, हमारे घर वालों को मालूम नहीं, हमारे दोस्तों को मालूम नहीं, मगर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी मालूम नहीं है? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे एक एक हरकत से वाकिफ़ है, एक एक हरकत पर उसकी नज़र है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारी आँखों की चोरी को भी जानता है। तुम जब रास्ता चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं पर होती है, निशाना कहीं पर होता है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला तो वो भी जानता है, आंखें तो बड़ी दूर की बात है, वमा तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों के अंदर क्या है, तुम्हारे दिलों के अंदर चल क्या रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को वो भी मालूम है। मेरे बंदो अल्लाह तबारक व तआला का जो कैमरा है वो 24 घंटे ऑन है, उसका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुक़र्रर कर दिया है। हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे फरिश्तों को मुक़र्रर कर दिया है जो तुम्हारे एक एक अमल को नोट कर रहे हैं। तुम्हारा कोई भी अमल उनसे पोशीदा नहीं है, तुम्हारा कोई भी अमल उनसे मख्फी नहीं है। मेरे भाइयों अमल तो दूर की बात है, हम ज़ुबान से जो निकालते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह क़ाफ के अंदर फरमाता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हम ज़ुबान से जो बात करते हैं, हम ज़ुबान से जो शब्द निकालते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचाने। ज़िंदगी भर की हमें मोहलत मिली है, ये मोहलत कब ख़त्म हो जाए, मौत कब आ जाए, किसी को नहीं मालूम। मेरे भाइयों क्या किसी को मालूम है कि मौत कब आएगी और कहाँ आएगी? अल्लाह ताला ने मौत का इल्म किसी को नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मौत कब आएगी और कहाँ आएगी ये किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। मेरे भाइयों कोरोना का दौर हमने और आपने देखा, इस लॉकडाउन के अंदर कितने ऐसे लोग थे अपने से करीब थे जिनसे हमारा उठना बैठना था, खाना पीना था, बातचीतें करते थे, लेकिन सुबह से शाम तक खबर आती है कि फला दोस्त फला शख्स का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों ऐसी भी मौतें हुई हैं जिनको कफन नहीं दिया जा सका, जिनको गुस्ल नहीं दिया जा सका,
जिसने पूरी ज़िंदगी, जिस बाप ने अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दी, हालात मेरे भाइयों ऐसे भी आए हैं कि बच्चा औलाद अपने बाप की डेड बॉडी छूने के लिए तैयार नहीं था। दुनिया के अंदर इतनी तरक्कियाँ हैं, इतना पैसा है, इतना जायदाद है, इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या कोई है जो मौत का इलाज कर सकता है? बीमारियों का इलाज है, दुनिया के अंदर हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन मेरे भाइयों मौत का कोई इलाज नहीं है। यही वो जगह है, यही वो चीज़ है जहाँ इंसान आकर बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। बेटा चाहता है कि मेरा बाप बच जाए, लेकिन क्या बेटा अपने बाप को मरने से बचा सकता है? नहीं बचा सकता है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वाक़िया के अंदर नक्शा खींचता है, फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, मेरे बंदो ज़रा वो वक्त याद करो जब किसी के मरने का टाइम आता है, जब किसी की रूह निकलने का टाइम आता है, जब किसी की जान के निकलने का टाइम आता है। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा रहा है, तुम्हारी बीवी इस दुनिया से जा रही है, तुम्हारे बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं। तुम उसके चारपाई के बाजू में बैठे हो, चारपाई के आसपास में बैठे हो, और तुम देख रहे हो कि हमारे बाप की जान निकल रही है, हमारे बाप की रूह निकल रही है, लेकिन तुम उसे मरने से नहीं बचा सकते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मेरे बंदो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस मरने वाले के सबसे ज़्यादा करीब हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा करीब अल्लाह तबारक व तआला है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हें ये लगता है मेरे बंदो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का कोई ज़ोर नहीं है, अल्लाह ताला की कोई हुकूमत नहीं है, अल्लाह ताला का कोई सल्तनत नहीं है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो ज़रा से उस मरने वाले को बचा करके तो दिखाओ। नहीं बचा सकते हो। दुनिया के अंदर जो फार्चूनर से चलता था, जिसके आगे पीछे 10-10 लोग लगे रहते थे, मेरे भाइयों हालात ऐसे आए, मेरे भाइयों आज 4 लोगों के कंधों पर चल रहा है। जो दुनिया के अंदर घंटों घंटों पर नहाता था, सर्दी का मौसम होता था तब उसे गीज़र चाहिए था, उसे उसका पसंदीदा साबुन चाहिए था, उसे उसका फेस वॉश चाहिए था। मेरे भाइयों हालात ऐसे हैं कि आज दूसरों के सहारे नहलाया जा रहा है, आज उसे उसके रिश्तेदार नहला रहे हैं, उसे उसके बेटे नहला रहे हैं। मेरे भाइयों ये मौत हमें हमारा अंजाम याद दिलाती है, ये मौत हमें हमारी बेबसी याद दिलाती है। मगर हम कितने पत्थर दिल हैं, कितने सख्त दिल हैं, कितनों लोगों को हमने जनाजा पढ़ा, कितनों लोगों को हमने कब्रिस्तान में दफन किया, उसके बावजूद भी हमें हमारी मौत याद नहीं आई, हमें हमारा अंजाम याद नहीं आया। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर 1 घंटे लाइट ना हो, गर्मी की शदीद से हम बेचैन बेहाल हो जाते हैं। क्या कभी हमने कब्र की उस तारीकी के बारे में गौर किया? क्या कभी हमने उस कब्र के आदाब के बारे में सोचा? क्या हमारे पास कुछ तैयारी है उस कब्र में जाने की? मेरे भाइयों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी की जनाजा में शामिल है। एक अंसारी सहाबी का जनाजा जा रहा है कब्रिस्तान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर एक कब्र के किनारे पर बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, और इतना रोए हत्ता बल्ला तहतहु तरा, कि वहाँ की ज़मीन भीग गई। आपके आंखों से जो आंसू निकले थे वहाँ की ज़मीन भिगो देते हैं। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं अपने सहाबा किराम से, अपने साथियों से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा तुम इस कब्र में आने की तैयारी कर लो। इस कब्र में जो मराहिल है, जो मंजिल है, मंजिलें आएंगी और तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। इस कब्र के अंदर तुम मुनकर नकीरों के सवालों के जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तुम यहाँ कामयाब होगे या नाकाम होगे। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, मेरे सहाबा तुम इस कब्र में आने की तैयारी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन हमारे हालात क्या है कि हम कब्रिस्तान में भी जाकर फ़ोन पर लगे रहते हैं, एक दूसरों से बातें करते हैं। कब्रिस्तान में भी हमें दुनिया का लेन देन याद है, दुनिया का कारोबार याद है। मेरे भाइयों वहाँ पर भी हमें मौत याद नहीं आती है। ज़रा उस्मान गनी को देखिए,
कि कौन उस्मान गनी है? ये वो उस्मान गनी है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा और 3 बार नाम लेकर कहा, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम क़त्तु। ये वही उस्मान है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा जुमला कहा। फरमाया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का कोई भी अमल उसका बिगाड़ नहीं सकता है। फिर भी उसके बावजूद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र को देखते थे तो आप इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। आपके साथी, आपके दोस्त सवाल करते थे, ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान तज़कुरुल जन्नत वन्नार वला तबकी। ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आपके सामने जन्नत की बात होती है, जहन्नम की आग की बात होती है, जहन्नम की ईंधन की बात होती है तो आप इतना नहीं रोते हैं जितना आप कब्र को देख कर रोते हैं। आखिर माजरा क्या है? ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, बात क्या है? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने साथियों से कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, इन्नल क़ब्र अव्वलु मिन मनाज़िलिल आख़िरा फ़मन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसर मिन। ये कब्र जो है ये आखिरत की मंजिल, पहली मंजिल है। अगर इस कब्र में हमें कामयाबी मिल जाएगी तो बाद में आने वाली मंजिलें इससे कहीं ज़्यादा आसान होंगी। आखिरत में भी हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी, लेकिन अगर हम कब्र के अंदर नाकाम हुए तो आखिरत में भी हम नाकाम होंगे। अगर कब्र की मंजिल हमारे लिए सख्त हुई तो इसके बाद आने वाली मंजिलें इससे कहीं ज़्यादा सख्त होंगी। मेरे भाइयों, हम कितने नादान हैं कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी को अपनी हमेशगी की ज़िंदगी समझ बैठते हैं। हम इस दुनिया को कमाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आज हर एक इंसान के जहन में, दिमाग में यही बात होती है, हम उनसे बड़े हो जाएं, हम उनसे माल और जायदाद में एतबार के हिसाब से हम उनसे आगे रहें। ये 40 साल, 60 साल, 50 साल की ज़िंदगी हम कमाने में गुजार देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बनाने संवारने में गुजार देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करने में हम गुजार देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये मालो जायदाद हमारे किसी काम नहीं आएंगे मेरे भाइयों। ये बच्चे बीवी हमारे किसी काम नहीं आएंगे। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब लेगा तो ये बच्चे, ये बीवी हमारे किसी काम नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही, क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देख कर भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ को देख कर भागेगा। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस माँ ने दुनिया की सारी तकलीफ़ें झेल कर पाला पोसा, माँ सामने है लेकिन माँ को देख कर इंसान भागेगा। व साहिबतिही व बनी, बीवी और बच्चों को भी देख कर भागेगा। क्यों भागेगा? कहीं ये मुझसे मेरे नेकी का सवाल न कर ले, कहीं मेरे गुनाह की सज़ा इसको न मिल जाए, ये सोच कर इंसान भागेगा। क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। इंसान के चेहरे पर खौफ तारी होगा, ऐसी दहशत बनी होगी कि इंसान ये तमन्ना करेगा कि अल्लाह मेरे माँ बाप को ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे। मेरे भाइयों, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आदाबि यौमि इदिन बिबनी, इंसान ये तमन्ना करेगा, जो ख्वाहिश करेगा, ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप को ले ले, मेरे पूरे ख़ानदान वालों को ले ले, मेरे पूरे गाँव वालों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। मेरे भाइयों, हमारे अमाल नेकियों से खाली पड़े हैं। हम दिन भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। सबसे जो वजह है, हम नमाज 5 वक्त की अदान होती है, हम रोडों पर घूमते टहलते हैं, होटलों पर चाय पी रहे हैं, गपो-शप में लगे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक को देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं। एक आतिश परस्त जिसका नाम अबू लुलू फ़िरोज़ी था, जो हज़रत उमर फ़ारूक का दुश्मन बना हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हैं और अबू लुलू फ़िरोज़ी
एक चादर के अंदर एक बड़ा सा खंजर छुपा के रखा रहता है। जब हज़रत उमर नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इंसान अबू लुलु फिरोज़ हज़रत उमर फ़ारूक के पेट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हज़रत उमर फ़ारूक के पेट से लबालब खून गिरने लगता है। हज़रत उमर फ़ारूक मुसल्ले से गिर जाते हैं, मुसल्ले पर गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरने के बाद आप हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़कर मुसल्ले इमामत पर खड़े कराते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें इस बात पर कि हज़रत उमर फ़ारूक पर इतना बड़ा कातिलाना हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों की नमाज नहीं छूट रही है, मुसलमानों की नमाज नहीं रुकी हुई है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबसे वजह यही रहती है इंसान के हम कारोबार में लगे रहते हैं, हमारी दुकानें चल रही हैं, हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारा तिजारत नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे बिजनेस के साथ साथ, तिजारत करने के साथ साथ अल्लाह की नमाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कहा, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस सलाति व ईताज़ ज़कात। मेरे कुछ नेक बंदे ऐसे भी हैं जो बिजनेस भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, लेकिन उन्हें उनका नमाज उन्हें तिजारत से नहीं रोकता, उनका ज़िक्र, उनका कुरान पढ़ना उन्हें उनका बिजनेस से नहीं रोकता है, उनके तिजारत से नहीं रोकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नमाज से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं दी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे, आपकी ज़ुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकलती थी, लेकिन एक मौका ऐसा आया जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। वो मौका ग़ज़वे खंदक का मौका था, जब आप और आपके सहाबा किराम से कुफ़ार मुशरिकीन से जंग चल रही थी। जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जंग कर रहे हैं, उस जंग के दौरान असर की नमाज का वक्त हो जाता है और जंग चल रही है, जंग के दौरान असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, असर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि आज हम लोगों की असर की नमाज क़ज़ा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार मुशरिकीन के लिए, उन कुफ़ारों के लिए बद्दुआ की, मला अल्लाहु बुयूतहुम नारा शगलूना अनिस सलाह, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन काफिरों की वजह से हमारी असर की नमाज क़ज़ा हो गई। ऐ अल्लाह, तो इन काफिरों के घरों को, इनकी कब्रों को तो जहन्नम की आग से, जहन्नम की ईंधन से भर दे। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नमाज की कितनी अहमियत थी, लेकिन हम और आप हैं कि नमाज के वक्त आता है, अजान की आवाज़ें कानों से गूंज रही हैं, लेकिन हम रोड पर टहल रहे हैं, बातचीत करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं मिलती मस्जिद में आने की। और यही वजह है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती उनसे सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुमको किस चीज़ की पादाश में जहन्नम में डाला गया। मेरे भाइयों, जन्नती कहेंगे, लोगों तुम मेरे गांव में रहते थे, तुम मेरे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, तुमको किस चीज़ के जुर्म में जहन्नम में डाल दिया गया। जहन्नमी जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जब अज़ान का वक्त होता था तो हम घूमते थे, टहलते थे। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी को, मकसद को पहचाने। ज़िंदगी में हमें करना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात, हज, सदक़ा खैरात करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सब लोगों को सालिह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मौला, हम सब लोगों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की कसरत से तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।